Hello, good morning students. Welcome in my YouTube channel VCC and myself Saurabh Rai from Subrat Singh Children Academy. Class 10th student, most welcome. Class 10th student, in last lecture we are discussing about the metallurgy topic, and in metallurgy we had discussed some steps. For example, the topic is metallurgy, and I told you in metallurgy there are 5 steps. Number 1, crushing or grinding. Number 2, concentration of ore. Number 3, conversion of ore into metal oxide. Number 4, reduction of metal oxide, and last, that is refining. Okay, we have discussed about these topics. Where in crushing we convert the ore in powder form. केवल इतना ही करना है कि आपको उसको क्या करना है, पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. एंड इन कॉन्सेंट्रेशन वी हैव डिस्कस द 4 मेथड्स. इफ the ore and impurities are weight difference, then we use hydraulic or gravity separation method. And if the impurities and ore have magnetic and non-magnetic nature, then we use magnetic separation method. And if we have the impurities like that, next topic magnetic separation के बाद क्या था, याद आ रहा है आपको? फर्स्ट ग्रेविटी, सेकेंड मैग्नेटिक. नेक्स्ट, इफ द impurities have tendency to weight by the oil or water. ओर और impurities की टेंडेंसी अलग अलग है वेट होने की. मीन्स वन इज हाइड्रोफिलिक एंड अदर इज हाइड्रोफोबिक. अगर ओर हाइड्रोफिलिक है तो आपकी impurities क्या होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक. इफ ओर इज हाइड्रोफिलिक देन इट शुड बी द impurities हाइड्रोफोबिक. ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, एक हाइड्रोफोबिक. तो हम कौन सा मेथड यूज करते थे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते थे. एंड इफ द impurities based on the solubility, then we use the chemical method, that is leaching. ओके, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता था, एक सरफेस और वाटर की स्ट्रीम, तेज स्ट्रीम पास कर दिया. जो लाइटर पार्टिकल थे, चाहे वो ओर हो चाहे इंप्योरिटीज है, वो बह जाते थे किसके साथ, स्ट्रीम के साथ, और जो हैवियर थे वो रुक जाते थे. ठीक. मैग्नेटिक सेपरेशन में एक मैग्नेट रोलर रहता था, रोलर पे हम ओर को डालते थे और वो पूरा घूमता था. जो मैग्नेटिक पार्ट्स है, चाहे वो ओर हो चाहे इंप्योरिटीज है, वो सेपरेट हो जाता था, जो अदर पार्ट है वो अलग होता था. फ्रोथ फ्लोटेशन, ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेते थे, ओर और इंप्योरिटीज को डालते थे, एक ऑयल वेट करता था और एक को वाटर वेट करता था. और फिर उसके बाद उसमें जैसे आप दही वो दूध मथते हैं, वैसे उसमें तेज स्ट्रीम चला के उससे फ्रोथ बना के उसको बाहर कर लेते थे. नेक्स्ट, लीचिंग, एक सॉल्वेंट मिक्स करते थे जिसमें एक कंपोनेंट चाहे और चाहे इंप्योरिटी सॉल्युबल होती थी और दूसरी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलती थी, फिल्टर कर लेते थे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था. आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, द नेक्स्ट प्रोसीजर is conversion of ore into metal oxide.
reduction of metal oxide and refining. 3 process are remaining. Today video we will discuss all 3. Okay, चलिए तो थर्ड स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, conversion of ore into metal oxide. क्यों हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं? द रीजन इज मेटल ऑक्साइड आर इजिली रिड्यूस्ड. मेटल ऑक्साइड जो है वो इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम कन्वर्जन करते हैं. ओके, देयर इज द 2 मेथड्स ऑफ ऑक्सीडेशन or converting into metal. First one is roasting and second one is the calcination. Calcination. What is the roasting and what is the calcination? Suppose we have the sulfide ore. हमारे पास मान लीजिए सल्फाइड ओर है and here we have the carbonate ore. Carbonate ore हमारे पास. Then in sulfide ore, if we take zinc sulfide, and in carbonate ore, if we take calcium carbonate. Conversion of ore into metal oxide, it means that we convert to zinc sulfide into zinc oxide. It means that oxygen is required. Okay, here the same process, it is also the conversion of concentrated ore into metal oxide. It means that CaCO3 convert into CO. We have no need to combine with oxygen. It means that in roasting, the heating process in the presence of oxygen of concentrated ore. In calcination, the heating process in the absence of oxygen, it converts into metal oxide. So what is the roasting? It is the process in which concentrated ore heating in the presence of oxygen and convert into metal oxide. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग. व्हाट इज द कैल्सिनेशन? लर्न नहीं करना है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं. रोस्टिंग, आर फॉर रोस्टिंग, और आर के बाद क्या आता है? यस आता है फॉर सल्फाइड ओर, सी फॉर कैल्सिनेशन एंड सी फॉर कार्बोनेट. तो लर्न नहीं करना आपको. अब जैसे ही आपके सामने सल्फाइड ओर आया, तो सल्फाइड ओर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड इफ यू हैव कार्बोनेट ओर, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट. इट मींस दैट देयर इज नो नीड टू ऑक्सीजन. हियर द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हियर ऑक्सीजन इज नो रिक्वायर्ड. दो व्हाट इज द कैल्सिनेशन? It is the process in which concentrated ore heating in the absence of air and convert into metal oxide. Okay,
तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग, विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से मैं प्रोसीजर रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या, क्रशिंग, सबसे पहले पीसना है आपको। आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेटेड, साफ करना है आपको, जो उसमें इनिशियल प्योरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, सफाई हो गई। सफाई के लिए ग्रेविटी सेपरेशन, सफाई के लिए फ्लोट फ्लोटेशन, सफाई के लिए लीचिंग, सफाई के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, आफ्टर द कॉन्सेंट्रेशन वी यूज द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड बाय टू मेथड। रोस्टिंग, आर फॉर रोस्टिंग किसका, सल्फाइड ओर का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग। कैंसिलेशन, कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ oxygen, heating. That is the roasting and cancellation. That is the process by which we convert to concentrated ore into metal oxide. अब जब metal oxide में convert हो गया तो उसको रिडक्शन करवाना उसका बहुत ईजी होगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे, रिडक्शन। अच्छा, दोनों चीज रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कॉमन है। एक चीज कॉमन क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में? कॉमन ये है कि दोनों ही प्रोसेस मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। कैंसिलेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों प्रोसेस में क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। सेकंड क्या कॉमन चीज है कि अगर कोई वाटर वेपर प्रेजेंस हुआ, जैसे आप जिंक ऑक्साइड को जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट कर रहे थे हीटिंग के थ्रू, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों में हीटिंग कर रहे हैं तो कोई भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो वो इजिली इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर 4, reduction of metal oxide, reduction of metal oxide। ठीक है, चलिए कुछ मेटल हैं वो तो इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ इजिली रिड्यूस नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आपका कॉपर हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ, अगर आप कोक से रिएक्शन करवा देंगे इसका तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका कन्वर्ट होगा किसमें, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो है आप कॉपर और हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर और H2O में। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि रिडक्शन के लिए हमको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड ऑफ कॉपर एज वेल एज आप लेड का भी इजिली कर सकते हैं और आयरन का। ठीक है, लेड, आयरन और कॉपर का जो रिडक्शन है वो कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया भी कहीं कहीं यूज करते हैं, इनके प्रेजेंस में इजिली करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें, जिंक ऑल्सो इज अ मेटल, जो आपका जिंक ऑक्साइड है ये ओनली रिड्यूस, इट इज ओनली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of coke, coke means C, तब ये क्या बनाएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दो ऑक्साइड आपके, ये तो जिंक के लिए हो गया, ये आपका कॉपर, लेड, आयरन के लिए हो गया। नेक्स्ट जो आपके ऑक्साइड हैं कौन कौन से, ऑक्साइड ऑफ सिल्वर एंड मरकरी, इसके जो ऑक्साइड हैं वो इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, ये इजिली रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ नहीं, आपके पास AgO है, सिल्वर ऑक्साइड है अगर आपके पास, तो आप कुछ नहीं करना, आपको हीट करना है, ये सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास HgO है, आपको हीट करना है, ये Hg और ऑक्सीजन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपके समझ में आया, कॉपर, लेड और आयरन, इन सब को ऑक्साइड जो रिडक्शन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, बट जिंक ऑक्साइड इज ओनली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। आपको ऑप्शन दे सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी तरह का क्वेश्चन कि
कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो केवल मेटल ऑक्साइड है जो केवल कोक के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है, विच मेटल इज रिड्यूस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट आपके बहुत एक्टिव हैं, कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, ये दैट इज लिथियम ऑल्सो, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ना, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ये इसके जो ऑक्साइड होते हैं सिल्वर और मरकरी के, ये जो ऑक्साइड होते हैं इनका जो ऑक्साइड होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इतना इजीली हो गया। ये जो ऑक्साइड है ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जैसे बॉन्ड हुआ K2O हुआ, Al2O3 हुआ, तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, तो इसको इतना इजीली किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ब्रेक नहीं करवाया जा सकता। तो ये जो रिड्यूस होते हैं, दीज आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, हाईली रिएक्टिव मेटल। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जैसे आपने K ले लिया तो K आपका प्लस है, O2 माइनस है, तो प्लस वाला निगेटिव के पास, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, प्लस कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पर, तो इस तरह से ये रिड्यूस होते हैं, इजीली ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। तो रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में इंपॉर्टेंट है कि सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, बट किसके लिए, कॉपर, लेड, आयरन के लिए, कॉपर, लेड, आयरन के लिए। ठीक है, हाँ, जिंक के लिए क्या करेंगे, केवल कोक यूज करेंगे, और सिल्वर और मरकरी Ag और Hg, वो Ag दोनों में G लगा है, Gg, Ag, Hg, जिसमें G लगा हुआ है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्साइड वो अनस्टेबल होता है। आफ्टर दैट जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं। तो कैसे रिड्यूस होते हैं, दीज आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइसिस से ही रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यहां पे आपने रिड्यूस करा लिया, मेटल मिल गया आपको, अब मेटल को आपको क्या करना है, रिफाइन करना है। क्यों रिफाइन करना है, क्योंकि आपको 99.9% प्योर मेटल चाहिए, मेटल ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, और इम्प्योर मेटल तो आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्योर मेटल। तो अगर आपको प्योर मेटल चाहिए तो आपको रिफाइनिंग करवानी होगी, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, रिफाइनिंग के बहुत से प्रोसेस हैं, जैसे अगर आपकी इम्प्योरिटीज या आपका जो मेटल मिला वो वोलेटाइल है, मरकरी जैसे है, तो आप डिस्टिलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और बहुत से प्रोसेस हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर बॉयल हो रहा है तो आप उसको करवा सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। बट जो आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसका करेंगे हम, हमें करना है इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल का। हमें पाना क्या है, प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखिएगा, एक हम कंटेनर लेते हैं, ये हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने 2 प्लेट लगा दी। ठीक है, ये आपकी एक प्लेट हो गई एनोड की और दूसरी प्लेट हो गई कैथोड की। तो एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या हो गया आपका, ये एनोड हो गया, और जो दूसरी प्लेट है नेगेटिव है, दैट इज कैथोड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एनोड प्लेट लेंगे हम ये इम्प्योर मेटल की लेंगे, इम्प्योर मेटल की, जिस भी मेटल का हमें रिफाइनिंग करना है, प्योरिफिकेशन करना है उसका। और ये जो कैथोड लेंगे ये हम प्योर मेटल का लेंगे,
प्योर मेटल का। ठीक है, इसके बाद इसमें हम फिल करेंगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या फिल करना है इसमें? हम फिल करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ किसका? सेम मेटल जिसका हम प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं, ऑफ सेम मेटल। ओके, फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए कॉपर का करना है, Cu का करना है हमें, क्या? प्यूरिफिकेशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम प्योर कॉपर लेंगे, सॉरी इम्प्योर कॉपर लेंगे, क्लियर? और यहां पे हम प्योर कॉपर लेंगे और यहां पे सॉल्यूशन में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे एक्वस। ठीक है, अब होगा क्या कि इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा आप कि जो एनोड है, एनोड पर हमेशा होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होगा यहां पे? यहां पे आप इम्प्योर कॉपर लिए हैं, इसमें इम्प्योरिटीज है प्लस कॉपर है, तो ये जो कॉपर है जैसे ही आप बैटरी के टर्मिनल से ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, इस कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये जो आपका कॉपर है ये ब्रेक करेगा Cu2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। प्रोसेस कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन। किस पे? एनोड पर। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर इस सोल्यूशन में आ जाएगा प्योर फॉर्म में। ओके, सेकेंड थिंग इज जो आपका कैथोड है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, यहां पे अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां हुआ तो इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसको जाने नहीं देगा, और कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो गया है इसलिए कॉपर इस सोल्यूशन में आ जाएगा। कॉपर सोल्यूशन में आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा इस कॉपर को ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जो आपका सोल्यूशन में आया हुआ कॉपर है उसको ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये कॉपर चला जाएगा इस रॉड पे। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? कॉपर 2+ एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेन कॉपर। तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये हमको मिल गया कॉपर। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या होगा? यहां हमने ऐड कर दिया है कॉपर, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, कॉपर को खींचेगा, कॉपर ऊपर आ जाएगा। ऐसे लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा इस इम्प्योर कॉपर में से जितनी कॉपर है सारी कॉपर इस सॉल्यूशन में और उसके बाद इस रॉड पे कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें प्योर कॉपर मिल गया और ये पूरी की पूरी इंप्योरिटीज तो कहीं नहीं जा रही है, यहां पे कलेक्ट हो जाएगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर से देखते हैं क्या बोला मैंने। पहले इसको फिगर को आप वॉच कर लीजिए कैसे कैसे क्या है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया? पीस दिया और को छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, आफ्टर दैट क्या किया? उसको साफ कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया। कॉन्सेंट्रेट कैसे कैसे किया? हमने कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोलिक प्रोसेस से किया या ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट वी यूज मैग्नेटिक सेपरेशन वेयर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट। आफ्टर दैट वी यूज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड दैट इज बेस्ड ऑन वेटिंग टेंडेंसी। आफ्टर दैट लीचिंग प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी टेंडेंसी। जब कॉन्सेंट्रेशन हो गई, आफ्टर द कॉन्सेंट्रेशन वी वांट द मेटल ऑक्साइड बिकॉज मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड इजिली, तो हम क्या करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। देयर आर 2 प्रोसेस, कैल्सिलेशन, रोस्टिंग। C फॉर कैल्सिलेशन, कार्बोनेट का। ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट इन कैल्सिलेशन heating of concentrated ore in the absence of oxygen
सल्फाइड और रोस्टिंग, आर फॉर रोस्टिंग, आर के बाद क्या आता है एस, सल्फाइड और का क्या करेंगे रोस्टिंग। सल्फाइड और में ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है, तो क्या करेंगे हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो the process in which in the presence of oxygen heating occur of the concentrated ore that is called roasting, वो दोनों का हमें क्या मिल जाएगा ऑक्साइड मिल जाएगा। after the getting oxide we convert this oxide into pure metal or impure metal, but we have no need to metal oxide, metal oxide की नीड नहीं है, मेटल की नीड है, तो हम क्या करेंगे रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन हम कोक के प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, अमोनिया के प्रेजेंस में करेंगे, लेकिन सबका नहीं करेंगे। किसका, कॉपर का, लेड का, आयरन का करेंगे, लेकिन जिंक का क्या करेंगे, जिंक का केवल कॉपर नहीं, सॉरी कॉपर, हाँ जिंक का जो करेंगे वो केवल और केवल कोक के प्रेजेंस में। सिल्वर और मरकरी ये अपने आप हो जाता है हीटिंग के बाद, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हाईली रिएक्टिव मेटल लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं, तो इनका क्या करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आफ्टर दैट जब आपके पास मेटल मिल गया, उसमें कोई अदर एलिमेंट नहीं है, तो इम्प्योरिटीज है, तो रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइनिंग के बहुत से प्रोसेस हैं, बट आपके सिलेबस में जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से क्या करना है, हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल डालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा कंटेनर लेंगे, इसमें एनोड और कैथोड लेंगे। एनोड किसकी, जो हमारा इम्प्योर मेटल है उसकी, कैथोड किसका, प्योर मेटल का। आफ्टर दैट वी फिल द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, we use the electrolytic solution of same metal which we want to purify, and after that we know that at anode oxidation loss of electron process occur, so from the anode copper loss electron and get deposit in the solution. After that 2 electrons move from positive to negative and come on the cathode. This copper attract by this electron and get deposit on the cathodes. This process occur continuously and we get the pure copper. Here the impurities collect at the anode. तो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर था, इंप्योरिटीज तो रह गई वहीं पे, क्योंकि इंप्योरिटीज को किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैथोड पर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गया, कॉपर अट्रैक्ट हो गया, कॉपर हो गया। तो इस तरह से हमें प्योर मेटल, इस कैथोड पर प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये आपका मेटलर्जी का प्रोसेस है। एंड वन मोर थिंग कि जितना आसान हम समझ रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करवा लेंगे, ऐसे नहीं होता है। दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। करोड़ों का टर्नओवर है कंट्री का, सारी कंट्री का, तो इतना आसान नहीं है कि हमने कॉपर लिया, कोक लिया। तो ये अलग अलग मेथड है सारे मेटल के लिए। ये मेथड अलग अलग तरीके से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ ये यूज किए जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10th में आपके 4 लाइन लिखा आपने तो आप पूरा का पूरा मेटलर्जी का पूरा फैक्ट्री लगा देंगे। सारे मेटल को आप, सर ने बताया है, हम सारे मेटल को प्योरीफाई कर लेंगे, सारे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाँ, ये आपकी बेसिक नॉलेज है, जो सीबीएसई का रिलेटेड पोर्शन उसमें ये लिखा गया, सम बेसिक मेथड्स ऑफ मेटलर्जी। तो ये जो आपके बेसिक मेथड्स थे, जो बेस था, वो मैंने आपको बता दिया। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोरोजन क्या है और उसका प्रिवेंशन कैसे होता है। तो हियर नो नीड टू अगेन डिस्कस व्हाट इज द कोरोजन, हाउ वी प्रिवेंट टू कोरोड टू एनी सब्सटेंस। ओके, दिस चैप्टर, थर्ड चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फोर्थ चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव नाइस डे।